Morning dear students, welcome to Genius Mind channel. Today we are going to study first chapter of 8th class Punjab School Education Board. In this we will study working with tables and mail merge in MS Word. First of all, what is table? Table is method of writing data in rows and columns. Means in the table we write data in the form of rows and columns. The horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns, and where both of these rows and columns are met, that is called cell. Now creating a table. How we can create a table? There are variety of ways to create a table. The first way is to open your MS Word and there will be option of table button on the insert tab. Here you can see there is insert tab. You can click on this insert tab and option will open, that is table. Then click on table option. When you click on table option, there will be a box appears. You can select number of columns and rows from this box. You can see there are the orange area. You can select with the help of this how many number of columns and number of rows you want to create. So here you can create a table. The second method is you can create a table by going to the same option of insert. Go to insert option and click on table and there will be a box appear. You can see here you can see number of columns and number of rows. You would put here number of columns and number of rows you want to create. 7, 8, 2, 3 जितने भी आपने create करने हैं, you will put that number in these column और आप create कर सकते हैं. Press OK और आपका table create हो जाएगा. Then there is the option of table tools. With the help of this option, you can create the pattern, different patterns of table. You can see here there are different patterns. Which pattern you want to create, click on that pattern and the same pattern will appear on the working area. Then the third method is by draw table. We can draw a table with the help of this option. You will go to the same insert option and there will be a table option. Then you can see there is a yellow area, draw table option पे click कीजिए. Then there will be a pencil appears in the working area. You can draw a table with the help of pencil. How जितने आपको टेबल में नंबर चाहिए, रोज कॉलम्स, you can draw with the help of pencil. Then entering data. Now how you will enter data in the table? Place the mouse cursor on the cell where you want to write any text or number, then type and a data will get entered. And to move to the other cell you can press tab key or arrow key. If you want to move to the right cell, you will click on the right arrow key. If you want to the left cell, you will click on the left arrow key, or shift plus tab key if you want to go to the left cell. So this is the way. With the help of that you can create a table and enter the data in that table. Now modifying a table. After entering a data, there can be some mistakes and you want to modify it, or you want to create add any column or want to add any row in the table. Then what will be the method? First of all, inserting column. If you want to insert a column in the table, how will you add that?
इंसर्ट मीन्स ऐड कॉलम्स, कॉलम आपने ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी सिलेक्ट द कॉलम एडजेसेंट टू विच वी वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम, जिसके साथ, जिस कॉलम के साथ आपने नया कॉलम ऐड करना है, यू विल सिलेक्ट दैट कॉलम। नाउ क्लिक ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ द कॉलम टू सिलेक्ट इट। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप जाएंगे द ऑप्शन ऑफ टेबल टूल्स, देन देयर विल बी ऑप्शन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन में ये ऑप्शन ओपन होगी, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो आप इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे इफ़ यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट कॉलम टू द राइट साइड, you will click on the insert right option. So this is the simple method. The second method to insert column is right click on the column where you want to insert column. Right click करेंगे, then there will be a box appears, insert option. There you can see insert option है, insert column to the left, insert column to the right, insert rows above, row below. तो insert column to the left, तो आपने insert columns to the left पे क्लिक करना है। अगर आप राइट पे क्रिएट करना चाहते हैं कॉलम, देन यू विल click on the insert columns to the right option. Now rows, how you can insert rows in a table, same method, बट आपने जो क्या करना है, रोज़ को क्या करना है, इंसर्ट आपने अबव करनी है या बिलो करनी है, डिपेंड करता है, आपने उस पर क्लिक कर देना है, इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो पे, नीचे करनी है या ऊपर करनी है इंसर्ट, ठीक है जी। देन देयर इज़ सेकेंड मेथड टू इंसर्ट रोज, सेम है, आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन आएगी, देन इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बिलो, जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, यू कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन और इंसर्ट हो जाएगी रो, ठीक है। नाउ यहीं पे आप देख लीजिए इंसर्ट सेल्स की भी ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी सेल, एनी न्यू सेल इन योर टेबल, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट इंसर्ट सेल्स ऑप्शन, सेल भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए सेकंड, ये नेक्स्ट है इंसर्ट अ सेल इन ए टेबल, सेम ऑप्शन जो मैंने आपको करवाई वही आप फॉलो करेंगे। नाउ डिलीटिंग कॉलम्स इन ए टेबल, इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम देन व्हाट विल बी द मेथड, सेम है। टेबल, आप टेबल टूल्स में जाएंगे, टेबल टूल्स में जाकर डिलीट कॉलम की ऑप्शन है, डिलीट कॉलम्स पे, डिलीट पे जाएंगे, देयर विल बी ऑप्शन ऑफ डिलीट कॉलम पे क्लिक कीजिए। जिस कॉलम को डिलीट करना है वहाँ पे माउस का कर्सर, पहले माउस का कर्सर लेके जाना है, फिर डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देना है, तो वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके नीचे ही ऑप्शन है डिलीट रोज़, ऊपर है डिलीट सेल्स। तो आप डिलीट रो अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं तो उस रो पे जाइए और क्लिक कीजिए डिलीट रोज़ पे, तो रो विल गेट डिलीटेड। अगर आप सेल डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल्स पे जाइए, डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिलीट सेल हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट टेबल, डिलीट टेबल ऑप्शन पे जाइए, टेबल विल गेट डिलीटेड। सेकंड जो मेथड, अगर आप माउस की हेल्प से डिलीट करना चाहते हैं तो माउस पे राइट क्लिक कीजिए, तो ऑप्शन आएगी डिलीट सेल्स की, डिलीट सेल कर दीजिए, तो यहाँ से सेल्स विल गेट डिलीटेड। रोज़ कैसे डिलीट होंगी, वही राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रोज़ की ऑप्शन आएगी। अगर आप माउस से डिलीट करना चाहते हैं, और अगर माउस से नहीं डिलीट करना, अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से डिलीट करना है, तो वही ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, डिलीट रोज़ की ऑप्शन। नाउ डिलीट सेल्स, ये भी हो गई है, डिलीट सेल्स पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करके ये बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप माउस की हेल्प से करना चाहते हैं तो डिलीट सेल्स पे जाइए और जो सेल आपने डिलीट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। नाउ डिलीट सेल, नाउ डिलीटिंग टेबल, ये भी हो गई है, डिलीट टेबल की ऑप्शन पे जाइए। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए टेबल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल में क्या होता है, इफ़ यू want to align the text of your table right, left or center, though you can do with the help of these properties of a table। तो आप क्या करेंगे, वहीं अगर आप टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे टेबल टूल्स की ऑप्शन आएगी, टेबल टूल्स में आपने जाना है, टेबल टूल्स में जाके आपने क्या करना है, द टेबल प्रॉपर्टीज़ विल गेट अपीयर, तो आपने टेबल
प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर देना है। टेबल प्रॉपर्टीज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स अपीयर होगा। तो यहाँ पे आपने अलाइनमेंट सिलेक्ट करनी है। तो देखिए लिखा है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट पे जाना है आपने। अलाइनमेंट पे लेफ़्ट सेंटर राइट, मीन्स जो टेक्स्ट है आप उसको लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, सेंटर में या राइट पे, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, लेफ़्ट सेंटर और राइट अलाइनमेंट। दूसरा मेथड है, और अलाइनमेंट राइट क्लिक की अगर हेल्प से भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए तो टेबल प्रॉपर्टीज़ ओपन होगा, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए तो सेम बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो दूसरा मेथड ये है। नाउ चेंजिंग द साइज़ ऑफ रोज, कॉलम और सेल। अगर आप चेंज करना चाहते हैं रोज, कॉलम या सेल्स के साइज़ को, तो आप क्या करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ पे ही क्लिक करेंगे। वहाँ पे रोज़ की ऑप्शन दिखेगी आपको, रोज़ पे जाएंगे। अगर कॉलम का साइज़ चेंज करना है कॉलम पे, अगर सेल का साइज़ चेंज करना है तो सेल पे जाएंगे। रो पे अगर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, स्पेसिफाई हाइट। तो यहाँ पे आप हाइट लिख देंगे रोज़ की जितनी आपको चाहिए। तो प्रीवियस रो पे जाना है तो प्रीवियस रो पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट रो पे जाना है तो नेक्स्ट रो पे क्लिक कीजिए। चेंजिंग द साइज़ ऑफ रो, तो इस मेथड की हेल्प से आप रो का साइज़ चेंज कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाइए और वहाँ पे ये बॉक्स ओपन होगा और रोज़ के हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम को भी आप ऐसे ही कॉलम की साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स, एक सेल है जैसे बड़ा है, आप जैसे आपने क्या करना होता है, कई बारी जैसे कुछ टेबल्स होते हैं उसमें एक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, वो आप कैसे करते हैं। तो आपने क्या जाना करना है, टेबल टूल्स में जाना है, वहाँ पे स्प्लिट सेल की ऑप्शन आएगी। स्प्लिट सेल में अगर आपने लिख देना है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ रोज चाहिए उस पर्टिकुलर सेल में, तो उसको ओके कर देंगे तो वो सेल स्प्लिट हो जाएगा। अब मर्जिंग सेल, मर्जिंग सेल्स में क्या होगा कि दो सेल्स अगर हैं उनको आपने कंबाइन करना है, एक सेल में मर्ज करना है, तो ये ऑप्शन यूज़ की जाती है। तो आपने सेम टेबल टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मर्ज सेल की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो सेल मर्ज हो जाएंगे। ना स्प्लिटिंग टेबल, टेबल अगर आपने स्प्लिट करना, जैसे टेबल है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे। और एंड देयर इज़ ए, you can see there is a no table can be divided only horizontally। टेबल को आप सिर्फ horizontally ही डिवाइड कर सकते हैं, vertically डिवाइड स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। नाउ देयर इज सेकेंड मेन जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है इफ़ यू वांट टू सेंड लेटर्स विथ सिमिलर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। इस लेटर का जो मैटर है दैट इज सेम बट द पीपल आर, देयर आर मैनी रेसिपिएंट्स टू विच यू वांट टू सेंड दैट लेटर, तो देयर इज़ ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज। तो इसको आपने कैसे यूज़ करना है, मेल मर्ज में दो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक है डाटा सोर्स, एक है मेन डॉक्यूमेंट। Morning dear students, welcome to Genius Mind channel. Today we are going to study first chapter of 8th class Punjab School Education Board. In this we will study working with tables and mail merge in MS Word. So first of all, what is table? Table is method of writing data in rows and columns. Means in the table we write data in the form of rows and columns. The horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns, and where both of these rows and columns are met, that is called cell. Now creating a table. How we can create a table? There are variety of ways to create a table. The first way is to open your MS Word and there will be option of table button on the insert tab. Here you can see there is insert tab. You can
click on this insert tab and option will open, that is table. Then click on table option. When you click on table option, there will be a box appears. You can select number of columns and rows from this box. You can see there are the orange area. You can select with the help of this how many number of columns and number of rows you want to create. So here you can create a table. तो सेकंड रेसिपिएंट आएगा। इसी तरह से आप से जितने पर्सन्स को आपने भेजना है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कंप्लीट द मर्ज। इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कंप्लीट द मर्ज। तो यहाँ पे आपका मेल मर्ज कंप्लीट हो जाएगा। क्लिक ऑन द, उसके बाद अगर आपने इफ़ यू वांट टू चेंज एनी लेटर of person of any individual letter, if you want to make any changes in individual letter, then you will click on edit individual letter option। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। देन मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट अपेयर हो जाएगा। इस पे ऑल पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है, तो आपका मर्ज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।